Now, so let's understand how to configure and scan for open ports. Okay. So in this demonstration, what we will be doing, we'll have a server and we'll have a client. Okay. Let's say you can have a server and an attacker. Okay. So there will be an open port on server. An attacker, what it will do, he will try to check open ports on server. Okay. For this scanning, we have a network scanner and the name is Nmap. Okay. It's also known as network mapper. It's like a very important tool using which you will be able to identify open ports of a different machine. Okay. Let's say I want to check open ports in order to connect to your open port and in order to proceed further. Now let's see how we have to check that. Okay. So at the moment, what I'll be doing, let's say I have a computer machine here, cmd.exe. Okay. And at the moment, first of all, I'm going to open a port on my machine, and then I would like to scan my machine and I want to check how many ports I have open. Okay. So let's say मैं एक port open कर रहा हूँ nc.exe -lvp 6789. Okay. So this you already did yesterday. You know what this command means. आप एक port open कर रहे हैं 6789. Clear? The port has been opened. Now what I want to do, first of all I want to see कि अगर मैं अपनी local machine पे ports check कर रहा हूँ कि कौन कौन से open है, then how can I do it? Okay. So first thing what you can do is you can make use of netstart commands. Okay. To check open ports on local machine, you can use netstat. Okay. And what netstat stands for, it's like network statistics. Okay. What you can do with netstat, you can check open ports and program running on the port. Okay. Clear? Let's see. तो कैसे check करते हैं? To check, the command is like this. Netstat -abn. Okay. What does this abn stands for? A is equal to all ports. How many ports are available on your machine? Every port will be checked. B stands for show name of exe running on port. Okay. And N stands for show only numbers, यानी IP एड्रेस आएंगे आपके पास, एड्रेस नॉट नेम्स, यानी DNS नहीं होगा. जैसे facebook.com से अगर आप कनेक्टेड हैं तो इंस्टेड ऑफ facebook.com IP एड्रेस डिस्प्ले होगा Facebook. ठीक है, क्लियर? अभी हम लोकल डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं इसलिए विल स्टिक टू IP एड्रेस, क्योंकि अभी हम एक दूसरे मशीन्स को IP एड्रेस से आइडेंटिफाई करेंगे. ठीक है. यस. हाँ, क्लोज हैं या वेटिंग है. क्लोज हैं तो उनका कोई मतलब ही नहीं है. जो ओपन है और जो एस्टैब्लिश्ड है कनेक्शंस, वो आपको मिलेंगे. देखते हैं. तो अब हमें क्या करना है. लेट्स से मैंने एक और कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया. नाउ लेट्स से लेट मी जस्ट पुट दैट हियर. Now, so here what you can do is on your local machine you can check your ports using netstat -abn. Okay. Let me use a more flag as well ताकि पेज बाय पेज रिस्पॉन्स आए. ऐसा ना हो कि एक बार में सारा फ्लश हो जाए और लास्ट तक पहुंच जाऊँ. ठीक है. तो एज सुन एज आई एंटर, तो अब आप यहाँ देख सकते हैं मोर पे अटक गया है. जैसे मैं एंटर करता जाऊँगा नेक्स्ट लाइन नेक्स्ट लाइन नेक्स्ट लाइन आती जाएगी. ठीक है. अब देखिए, तो whatever active connections your machine has, that will be listed. Okay. So the first thing you will understand is the protocol using which that connection has been established. The local address, that means the address of your machine, or you can identify your local IP कि आप कौन से local IP से connected हो,
किसी दूसरी मशीन से, ठीक है। ऐसा हो सकता है आपके पास मल्टीपल नेटवर्क अडाप्टर्स हो, एक ईथरनेट कार्ड हो, एक वाईफाई कार्ड हो, आप दोनों से ही इंटरनेट से कनेक्टेड हैं, ठीक है। हो सकता है कि कोई ईथरनेट वाले कनेक्शन से आपके साथ कनेक्टेड है और आपको वो इन्फॉर्मेशन देनी है, तो वो आपको इस लोकल एड्रेस से मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, फॉरेन एड्रेस। फॉरेन एड्रेस का मतलब ये है द रिमोट कंप्यूटर विथ विच यू आर कनेक्टेड टू, ओके। यहाँ पे जो 0.0.0.0 है, इसका ये मतलब है कि आपका जो ये पोर्ट नंबर है 135, इट इज ओपन ऑन ऑल द नेटवर्क अडाप्टर्स अवेलेबल ऑन योर मशीन, ठीक है। अगर किसी स्पेसिफिक नेटवर्क अडाप्टर के लिए ओपन होता है पोर्ट, तो फिर उसका आईपी एड्रेस आपको लिस्ट होगा, जो भी आपका लोकल मशीन का आईपी है, जैसे 192.168.1.1 या 1.2, जो भी आपका मशीन का आईपी है। बट अगर वो सेम पोर्ट जितने भी नेटवर्क अडाप्टर्स आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड हैं, सबके लिए अगर ओपन है, और कोई भी बंदा किसी भी नेटवर्क से कनेक्टेड है, कोई एक्स पर्सन है, वो उस नेटवर्क से कनेक्टेड है, और आपका एक एनआईसी उस नेटवर्क से कनेक्टेड है, और अगर वो आपका पोर्ट स्कैन करेगा तो उसे पता चल जाएगा कि आपका पोर्ट नंबर 135 ओपन है, एंड ही विल बी एबल टू कनेक्ट, बिकॉज at this moment this 135 is listening on all the protocols. 0.0.0.0 means on any adapter he will be able to connect. फिर वही वाला कनेक्ट होगा, ठीक है। ऐसा कर सकते हैं कि हम लिमिटेशंस डाल दें कि एक स्पेसिफिक नेटवर्क पे ही वो पोर्ट ओपन है और सिर्फ उसी नेटवर्क से लोग उस पोर्ट को कनेक्ट कर सकते हैं, ऐसा आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। Then what we have is you have the state of your connection. So at this moment you can see that these many ports are open on my machine. Port number 135, port number 445, 554. Meanwhile, you can also see that on every individual port there is some service running. Okay? जैसे यहाँ पे service host.exe है, मेरे 554 पे मेरा WAMP नेटवर्क चल रहा है, ठीक है, Windows मीडिया प्लेयर नेटवर्क चल रहा है, ठीक है। इसके साथ में 902 पे मेरा VMware का कुछ चल रहा है, 1025 पे WinInit.exe कोई प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है। धीरे धीरे आई कैन गो डाउन एंड आई कैन सी दैट 1029 पे LSASS.exe चल रहा है, फिर services.exe चल रहा है, ठीक है ना। सो देयर आर मेनी ओपन पोर्ट्स ऑन माई मशीन, क्लियर। एज सुन एज वी गो डाउन, नाउ यू कैन सी दैट यहाँ पे एक पोर्ट नंबर है 6789 which is listening at the moment, and nc.exe is running. Okay, so now you can identify कि जो भी आपके मशीन में पोर्ट्स ओपन हैं वो आप नेटस्टार्ट से लिस्ट कर सकते हैं, ये लोकल मशीन पे है, ठीक है। आगे चल के ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपके कंप्यूटर में कोई वायरस प्रोग्राम आया और उसने आपके कंप्यूटर को नेटवर्क के ऊपर कोई पोर्ट ओपन कर दिया, एंड एनी अदर अटैकर वुड बी एबल टू कनेक्ट टू दैट पोर्ट, ओके। तो आपको अगर उस पार्ट को रोकना है तो फिर आप netstart-abn यूज करके ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा पोर्ट ओपन है और कौन सी एक्सी रन हो रही है। अगर वो एक्सी आपने रन नहीं करी है तो आप चाहें तो उसे टास्क मैनेजर में से जाके क्लोज कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर। वो कैसे आप कर सकते हैं? यू कैन गो टू योर विंडो की, यू कैन टाइप इन टास्क mgr, okay, your task manager will open, you run it as an administrator, okay, and here what you can do is you can see that आपको यहाँ से प्रोग्राम का नाम मिल गया nc.exe। अब आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो nc.exe कहाँ पे है, you can click, you can simply type in nc.exe and you will get that, okay, clear। आप right click, end process tree, and you can close that, clear। So that port will automatically be closed, clear, समझ में आ गया। तो वन थिंग इज कि जो भी आपकी मशीन में ओपन पोर्ट्स हैं उनका एक स्टेट होता है, ठीक है। अब आप एक काम कीजिए, एनीबॉडी कनेक्ट टू क्रूजर एंड जस्ट कनेक्ट टू माय पोर्ट नंबर 6789। आई एम कनेक्टेड ऑन क्रूजर नेटवर्क 192.168.43.234।
Okay, so I've got a connection from Gaurav, and he has connected to me from IP address 192.168.43.87. Okay, now what I can do is, let us just check the netstat status again. Okay, let's do that. Netstat -abn, and I would like to only find a string where I am searching for port number 6789 only. ठीक है, अब उतनी बड़ी लिस्ट का क्या जरूरत है, मेरे को सिर्फ यही चेक करना है 6789 पे क्या है. ठीक है, क्या स्टेटस है. तो जब मैंने 6789 का स्टेटस अब चेक किया है, अब आप देख सकते हो जो मेरा लोकल एड्रेस है, मुझे ये कनेक्शन डिस्प्ले हो रहा है कि ऑन दिस आईपी एड्रेस ओपन मेरा किस पे था, ऑल पोर्ट्स पे. ठीक है ना. बट जब कनेक्शन बना तो मेरे एक स्पेसिफिक नेटवर्क अडेप्टर पे जिसपे आईपी एड्रेस अलॉटेड है 43.234, उस पे पोर्ट नंबर 6789 पे आई हैव गॉट अ कनेक्शन फ्रॉम अनदर आईपी एड्रेस. दिस बिलोंग्स टू गौरव्स आईपी एड्रेस and a random port with which we are connected to, and the status of the connection is established. Okay, clear? समझ में आ गया? तो using netstat commands you can identify who's connected to your local machine, okay, and on what port and on what IP address. Okay, clear? उसके बाद में अगर ये public IPs हैं तो आप identify कर सकते हैं कि कहाँ पे है server, कहाँ पे connected. ठीक है, let's say now let's say what I will do this time. Let's say मैंने hackweather.in open किया हुआ है. ठीक है, I am connected to hackweather.in. Now what I would like to do, let's say कि मैं ABN हटा देता हूँ. Let's say I don't want the numbers part, N हटा दिया मैंने. तो if I want to see whether if I am connected to hackweather.in from some server, अब ऐसे जब नेटस्टैट आप करेंगे तो वो धीरे धीरे पूरा प्रोसेस करेगा, एक एक पोर्ट को इंडिविजुअली चेक करेगा और उसके बाद में डिस्प्ले करेगा. ठीक है, अगर आप n लगा देते हैं तो ऑटोमेटिकली फटाफट वो कंप्यूट कर देता है. अदरवाइज वो हर आईपी एड्रेस का जो रिलेटिव डोमेन नेम है उसको पूरा लिस्ट करके आपको डिस्प्ले करेगा. मैं एक काम करता हूँ, इंस्टेड ऑफ दिस कमांड व्हाट आई विल डू समथिंग लाइक दिस, netstat-a. ओके, सो नाउ व्हाट आई हैव गॉट, I've got a complete list of domains here. Okay, तो ये Windows कंट्रोल पे कुछ machines connected हैं. उसके बाद में I'm connected to Gaurav's machine as well, 49953. Then these were my TCP ports. ठीक है, ये एक्चुअली इंडिविजुअल सर्वर्स के नाम आ रहे हैं जिनके साथ हम कनेक्टेड हैं. तो इंडिविजुअल डोमेन नेम्स ऑफ द कंप्यूटर्स आर कमिंग इंस्टेड ऑफ google.com. ठीक है ना, गूगल के उस कंप्यूटर जिससे हम कनेक्टेड है उसका नाम हमें डिस्प्ले करता है. ठीक है, क्लियर? सो वी आर कनेक्टेड टू मल्टीपल डिफरेंट सर्वर्स. तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आप नेम्स के थ्रू भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ऑन हाउ मेनी कनेक्शंस यू हैव अ एस्टैब्लिश्ड कनेक्शन अवेलेबल ओवर हियर. ठीक है, क्लियर? समझ में आ गया? नाउ सो दिस इज वन पार्ट कि अगर आपको लोकल मशीन पे अगर चेक करना हो कि कैसे आपका पोर्ट ओपन है एंड टू व्हाट कनेक्शंस यू आर कनेक्टेड टू, यू कैन चेक दैट यूजिंग नेटस्टैट. ठीक है, ये तो चेक किया आपने अपने लोकल मशीन. लेकिन अगर आपको किसी दूसरे कंप्यूटर को चेक करना हो कि उस मशीन पे कौन से पोर्ट्स ओपन है, तो आप कैसे परफॉर्म करेंगे. ठीक है, तो let's do a test. Okay, now what we will do, let's say I'm going to close this connection and I'm going to listen again. ठीक है, and this time I will act as an attacker and I want to use nmap
that is network mapper, to check open ports on other machine. Clear? This machine, this other machine could be a server, or it could be any other local machine in our network. Clear? Let's do that. So what I will do, हम सभी लोग कनेक्टेड हैं, आपस में एक ही नेटवर्क के ऊपर हैं, ठीक है। अब मैंने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डू टू थिंग्स, ओके। इंटरनल चेक समझ में आ गया नेट स्टैट से। नाउ व्हाट वी विल डू, चेक ओपन पोर्ट्स ऑन अदर मशीन। Clear? To do this, the tool which we are using, that will be Nmap, network mapper. Okay? Use करते हैं। तो let's just start. मैंने अपना Zenmap start किया। Zenmap is the graphical tool, Nmap is the command line tool. Process दोनों का सेम है और दोनों एक ही कंपनी के बनाए हुए हैं प्रोडक्ट्स में। So I've just started Zenmap. ठीक है, Zenmap जैसे ही हमने रन किया, आप यहाँ देखेंगे कि आपके सामने एक एप्लीकेशन ओपन हो गई है। ठीक है, इस एप्लीकेशन में आप एक टारगेट स्पेसिफाई कर सकते हैं टू विच यू वांट टू स्कैन। आप एक कमांड स्पेसिफाई कर सकते हैं, द स्कैन टाइप विच यू वांट टू डू। देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल, और यहाँ पे एक पूरी लिस्ट है different types of scans. You can do an intense scan, you can do a ping scan, you can do a quick scan, you can do a regular scan. Okay? Clear? तो पहले हम बेसिक स्कैन करेंगे, उसके बाद में फिर हम एक ऐसा स्कैन करेंगे जो अटैकर्स के लिए काफ़ी यूजफुल है। ठीक है, देखिए क्या। नाउ सो वी हैव अवर बेसिक डिफॉल्ट स्कैन मैकेनिज्म हियर। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, हम एक IP एड्रेस को स्कैन करेंगे। ठीक है, फॉर द मोमेंट, फॉर डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस, आई एम स्कैनिंग माई ओन मशीन एट द मोमेंट। ओके, सो आई हैव द IP एड्रेस 192.168.43.234. okay, clear? So we are performing intense scan at the moment, and you can see that automatically the command has been modified as soon as you have specified the target. Okay, clear? Let's click on scan now. तो अब जब हमने स्कैन क्लिक किया, ऑन द राइट हैंड साइड यहाँ पे आप देख सकते हैं एक प्रोग्रेस बार है जो धीरे धीरे मूव हो रहा है। ठीक है, इसके थ्रू आपको ये पता चलता रहेगा कि आपका स्कैन एक्टिव है या स्टॉप हो चुका है। ठीक है, अब देखते हैं हम यहाँ पे NSE की Nmap स्क्रिप्टिंग इंजन की कुछ स्क्रिप्ट्स रन हो रही हैं बैकग्राउंड में, जो कि आपको आउटपुट जनरेट करके देंगी कि टारगेट मशीन के अंदर कौन कौन से पोर्ट्स ओपन हैं। ठीक है, let's just wait for a moment. ठीक है, actually is saying we have skipped the OS scan because OS scan local machine के ऊपर नहीं रन करता है, हमें पता है कि कौन कौन से क्या हैं। अब देखो, my machine is fully attackable. मेरे मशीन में तो सारे ही पोर्ट्स लगभग ओपन है। ठीक है, कोई कहीं से भी हैक कर सकता है। आपके मशीन्स में कितने पोर्ट्स आ रहे हैं वो अभी आपको देखने पड़ेंगे। ठीक है, आप देखो, तो जैसे ही मैंने अपना एप्लीकेशन टेस्ट किया, अब आप देखोगे तो मेरे मशीन में बहुत सारे पोर्ट्स हैं, सब ओपन है। ठीक है, पोर्ट नंबर 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, a lot of ports are open. You can connect to my machine on any of these ports. Okay, clear? But generally ऐसा नहीं होता, कुछ ही लिमिटेड नंबर ऑफ पोर्ट्स ओपन होते हैं। मैंने कोई एप्लीकेशन ऐसी रन की होगी जहाँ पे उसने सारे पोर्ट्स ओपन कर रखे होंगे, या कोई वायरस प्रोग्राम होगा जो कि सारे पोर्ट्स ओपन करके बैठा है ताकि कोई भी अटैक कर सके। ठीक है, क्लियर? नाउ द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज, आप जब अपना मशीन चेक करोगे तो विल गेट टू नो कि कौन कौन से पोर्ट्स ओपन है। ठीक है, क्लियर? So now what we can see is, let's go a little down and you can search for 6789 port number. Is that open or not? Let's just do a quick check. 6789, and you can see that this port number is open, 6789. ठीक है, by default it is making a wild guess कि it is an IBM DB2 admin, क्योंकि हर पोर्ट नंबर का एक डिफॉल्ट पोर्ट होता है। ठीक है, 6789, बट मैंने रैंडमली चूज कर दिया।
तो इट कुड बी पॉसिबल कि जरूरी नहीं है कि जो ये सजेस्ट कर रहा है कि वहां पे कौन सा प्रोग्राम है वो ही हो, ठीक है ना। वो तो आपको एनालिसिस करने के बाद में पता चलेगा कि सर्वर साइड पे जो पोर्ट ओपन है वो कौन सा पोर्ट है, ठीक है। आप इसकी स्कैनिंग के ऊपर आप भरोसा नहीं कर सकते, बट आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ पोर्ट ओपन है 678। सर लेकिन मैंने जो अपनी मशीन से आपका पोर्ट देखा तो इसमें काफी कम आए, मतलब इतने सारे नहीं आए। अच्छा नहीं आए, ठीक है। अभी तुम्हारा ओएस स्कैन होएगा ना तब आएगा। अभी देखिए दूसरे एप्लीकेशन में पोर्ट ओपन करा है वो भी टैपेबल होते हैं, जैसे आपके में विंडोज मीडिया प्लेयर ने एक पोर्ट ओपन किया था, हाँ तो वो पोर्ट भी टैपेबल है। हाँ यस। अगर वो विंडोज मीडिया प्लेयर की एप्लीकेशन अगर वल्नरेबल है तो एक्सप्लॉइट हो जाएगी। मैं इनपुट दूंगा और खराब हो जाएगी, ठीक है। अभी बताता हूँ, क्लियर, समझ में आ गया। ठीक है। नाउ हाँ कोई परमिशन नहीं चाहिए तुम्हें स्कैन करने के लिए, बट स्कैनिंग इज इलीगल, ओके। किसी दूसरे के कंप्यूटर को स्कैन करना इज लाइक इलीगल, इलीगल है, यस, ठीक है। आप किसी दूसरे के सर्वर्स को स्कैन नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब वो क्राइम है, अगर उनके लॉग्स में आ गया तो आपका आईपी ट्रेस हो गया तो वो आपको केस कर सकते हैं, ठीक है। पोर्ट स्कैनिंग इज इलीगल। नाउ सुनिए, नाउ व्हाट नेक्स्ट वी विल डू, आई विल शो यू वन थिंग, ओके। अब देखो, जैसे ही मैं अपना सर्वर स्कैन कर रहा हूं दोबारा, मेरा एक पोर्ट ओपन है एंड आई एम ट्राइंग टू स्कैन अ पोर्ट अगेन, ओके। अब एक चीज देखो, जब मैं अपनी स्कैनिंग परफॉर्म कर रहा हूं, ठीक है, जैसे ही मेरा पोर्ट नंबर स्कैन होगा, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली व्हाट एट दिस मोमेंट ही इज डूइंग, ही इज ट्राइंग टू सेंड सम पैकेट टू द मशीन, ओके, और मशीन उस पैकेट को एक्सेप्ट कर रही है और फिर एक रिस्पांस जनरेट करे जिससे पता चलेगा कि हाँ ये वाला जो पोर्ट नंबर है 6789 वो ओपन है, ठीक है। नुकसान क्या है, इंटेंस स्कैन से सर्वर को ये पता चल सकता है कि हु इज स्कैनिंग द नेटवर्क, क्योंकि उसका आईपी एज अ कनेक्शन आ जाएगा और फिर वो आपको ट्रबल कर सकता है। एक मिनट, ऐसा मतलब शायद लोकल मशीन पे इसने ऐसा किया नहीं, तुम आप करो, ठीक है, आप डायरेक्ट कनेक्ट मत करना, जस्ट ट्राई टू परफॉर्म एन इंटेंस स्कैन। देखो कार्तिक के उससे हुआ मेरे पास स्कैन, तो कार्तिक का एक वो आया मेरे पास, पैकेट आया, पैकेट मेरे इस कनेक्शन पे रिसीव हुआ और मेरा ये कनेक्शन डाउन हो गया, ठीक है। अब मेरा ये पोर्ट बंद हो गया एट द मोमेंट, ठीक है। तो द थिंग वाज आई आइडेंटिफाइड दैट देयर इज सम मशीन हु इज ट्राइंग टू कनेक्ट टू माय नेटवर्क, ओके। ये जो आईपी एड्रेस है इस पोर्ट नंबर से मेरे को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो जो नॉर्मल स्कैन्स हैं उससे ये पता चल जाता है कि somebody is trying to scan the net, ठीक है। जो अटैकर्स हैं, आज की डेट में एक नई टेक्नोलॉजी है आइडल स्कैन है, ठीक है। आइडल स्कैन इज लाइक अ गुड स्कैन। इससे क्या फायदा है, इससे पता नहीं चलता कि आप स्कैन कर रहे हो सामने वाले के नेटवर्क, ठीक है। अब आइडल स्कैन एक्चुअली में क्या है, इसमें आइडल स्कैन की लिस्ट कहाँ है, स्कैन, ओपन स्कैन, से स्कैन, choose, search, compare, profile, help. Okay, so what I'll do, let's just go here and let me just get the commands for idle scan. Okay, idle scan. Okay, now अब जो idle scan है,
ठीक है, here we'll have the command for idle scan. ठीक है, ये है आपका idle scan का इंफॉर्मेशन. ठीक है, idle scan में आप क्या करने वाले हैं, क्या हो गया भाई, इतना बड़ा क्यों हो गया, देखिए. So now what you will do to execute an idle scan, you need to use this option -si. ठीक है, and then you have to connect to scanner network and you have to specify कि आप किसी और आईडी से या किसी और डिवाइस से स्कैन कर रहे हो. ठीक है, तो उसमें आपका आईपी एड्रेस डिस्क्लोज नहीं होगा. ठीक है, क्लियर. अब आइडल स्कैन एक्चुअली में क्या कहता है, लेट्स हैव अ लुक हियर. ठीक है, ऑप्शन क्या है, -si यूज्ड फॉर आइडल स्कैन. और आइडल स्कैन क्या कहता है, लेट्स सी हियर. या ठीक है, ठीक है, देखो अब इसमें क्या है, आइडल स्कैन के अंदर देयर विल बी एन अटैकर, देयर वुड बी अ ज़ॉम्बी मशीन एंड देयर वुड बी अ टारगेट. ठीक है, ज़ॉम्बी कौन सी मशीन होती है, अ मशीन ऑन अ नेटवर्क विच इज आइडल, यू कैन से, विच इज नॉट बीइंग यूज्ड. ठीक है, जैसे आपका मॉडम, जो आपका मॉडम होता है उसके ऊपर कोई ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं कर रहा होता है. ठीक है, और उसके ऊपर कोई शक भी नहीं करता अगर उससे कोई पैकेट आता है या उससे कोई पैकेट जाता है. ठीक है ना, ये हजारों करोड़ों पैकेट्स ट्रेवल कर रहे हैं एक मिनट में मॉडम और आपकी मशीन के बीच में. तो अगर मॉडम से कोई पैकेट आया तो जनरली इट गेट्स इग्नोर्ड. ओके, सो वी जनरली टेक मॉडम एज द ज़ॉम्बी. ओके, तो ज़ॉम्बी इज अ मशीन हु इज करेंटली इनएक्टिव ऑन अ नेटवर्क, मतलब है एक्टिवेटेड बट उसे कोई ऑपरेशंस नहीं. नाउ so what will be done in this attack is, अटैकर क्या करता है, एक सिम रिक्वेस्ट भेजता है ज़ॉम्बी को, और ज़ॉम्बी उस डिवाइस के साथ में सिंक्रोनाइज और एक्नॉलेज करता है और फिर उसकी इंफॉर्मेशन इसको बता देता है कि वेदर दिस पोर्ट इज ओपन और नॉट. क्लियर. नाउ सो दिस इज द आइडल स्कैन ऑफ एन ओपन पोर्ट, और ये है आइडल स्कैन ऑफ अ क्लोज्ड पोर्ट, जिसके अंदर ये क्या करेगा, सिन भेजेगा, बट अगर रिस्पॉन्स नहीं होगा तो है जो भी है केस वो रीसेट हो जाएगा. ठीक है, तो यू कैन अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग. मैं आपको इसका वो करके बताता हूँ कि हाउ यू हैव टू यूज दिस आइडल स्कैन. ठीक है, क्लियर. नाउ सो लेट्स डू दैट. सो नाउ व्हाट वी विल डू, let's say we are going to scan a network. Let's say I'm going to go to nmap here. I'm going to use -si. ठीक है, मैं कमांड लिखता हूँ. अच्छा, एक काम करता हूँ, cls. ठीक है, let me just run this. ठीक है, पोर्ट मेरा ओपन हो गया, और जो स्कैन कमांड आप यूज करेंगे वो स्कैन कमांड होगी आइडल स्कैन. आइडल स्कैन से आप क्या करेंगे, nmap-si. ठीक है, यू विल स्पेसिफाई द टारगेट आईपी एड्रेस 192.168.43.234 एंड फ्रॉम द ज़ॉम्बी 192.168.43.1, समथिंग लाइक दिस, द मॉडल. ओके, और बाकी गेटवे से आप चेक कर सकते हैं कि आपका गेटवे क्या है अगर आप सेम नेटवर्क पे हैं तो. ठीक है, आईपी कॉन्फ़िग आप एग्जीक्यूट करेंगे, आपको गेटवे का आईपी मिल जाएगा. ठीक है, नाउ so try to execute this command, and within your output you should identify कि आपका मेरे मशीन का पोर्ट नंबर 6789 ओपन है. ठीक है, और यहां पे मेरे को कोई पैकेट रिसीव नहीं होगा. ठीक है, तो जब आप स्कैन करेंगे आपको इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगी कि मेरा पोर्ट ओपन है, और डायरेक्ट कनेक्शन भी एस्टैब्लिश नहीं होगा. ठीक है, क्लियर. कीजिए आइडल स्कैन. ठीक है,
तो आइडल स्कैन में यू कैन एक्सप्लॉइट एन आइडल मशीन ऑन द नेटवर्क एंड इट विल गिव यू इंफॉर्मेशन अबाउट ओपन पोर्ट्स ऑफ अ विक्टिम मशीन ऑन अ नेटवर्क. हुआ स्कैन हो रहा है. You just need to check 6789 is open or not, and I should be like कि हाँ मेरे पास यहाँ पे कोई पैकेट रिसीव ना हो. ठीक है, हो रहा है. ये मैक एड्रेस इसका है सर. चेक करेंगे. वो है 6789 आ गया. हाँ कि इट्स ओपन. ठीक है, ओपन पोर्ट है, दिखा रहा है 6789 इज एन ओपन पोर्ट. बट आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे इस बार कोई पैकेट रिसीव नहीं हुआ. ठीक है, तो इससे अब ये फायदा हुआ कि आई वोंट बी एबल टू नो दैट यू स्कैन माई पोर्ट. तो मुझे कोई शक नहीं. हाँ, वो तो अगर आप मॉनिटरिंग कर रहे हो किसी स्निफर से तो फिर आपको पता लग जाएगा. जैसे वाईशार्क है, वो नेटवर्क मॉनिटरिंग टूल है. अगर आप वो आइडेंटिफाई कर रहे हो तो आपको पता चल जाएगा उस टाइम टू मेक कनेक्शंस विद यू. लेकिन क्लाइंट से जो ज़ॉम्बी मशीन ने इंटरैक्ट किया तो अटैकर की इन्फॉर्मेशन तो फिर भी नहीं मिल पाएगी. नहीं, हाँ ये कह सकते हो. अटैकर की इन्फॉर्मेशन ज़ॉम्बी मशीन पे अगर स्निफिंग करेंगे तब पता लगेगा. हाँ, ऑफ कोर्स. ठीक है, ये पता चल सकता है कि हाँ कुछ हो रहा है, लेकिन कहाँ से हो रहा है, क्या हो रहा है. जाओ, क्लियर हो गई ये बात. पोर्ट स्कैनिंग समझ में आ गई. तो whenever you need to scan a port of other machine, you have to scan with idle scan. तो आपको पोर्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, कौन कौन से पोर्ट्स ओपन है. ठीक है, अब जब आपको पोर्ट की इन्फॉर्मेशन मिल गई तो आप डायरेक्टली कनेक्ट कर लोगे. नेटकैट, सर्वर आईपी, पोर्ट नंबर, एंड यू कनेक्टेड एंड यू कैन एक्सप्लॉइट द थिंग्स. ठीक है, क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया. तो द थिंग इज कि मान लो मेरे पास एक वायरस प्रोग्राम चल रहा है जिसने पोर्ट नंबर 6789 ओपन कर रखा है एंड ही इज गोइंग टू रिटर्न अ कमांड प्रॉम्प्ट. और आपने स्कैन किया मेरा नेटवर्क, आपको मिल गया एक पोर्ट नंबर कि हाँ ठीक है ये वाला प्रोग्राम चल रहा है, ये पोर्ट नंबर ओपन है. आपने उसे कनेक्ट किया और आपको मेरा शेल मिल गया. ठीक है, तो मैं तो गया. ठीक है ना, दिस इज द थिंग. तो होता है ऐसा, बहुत सारे सर्वर मशीन्स हैं जिन पे ये शेल्स वगैरह ओपन होते हैं. और जब आप स्कैन करते हैं आपको पोर्ट्स मिलते हैं, जब आप कनेक्ट करते हैं तो यू गेट एक्सेस टू दैट मशीन. ठीक है, अब जब आपको एक्सेस मिल गई तो फिर आप उसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं. ठीक है, क्लियर. जो अदर पोर्ट्स ओपन दिखा रहा है सर, उन पे कुछ एक्शन लिया जा सकता है. जो अदर पोर्ट्स ओपन दिखा रहा है अदर हाँ. 6789, हाँ. तो उनके ऊपर भी सेम. हाँ, यू कैन डू एनीथिंग विद दोज पोर्ट्स. बट अब वहाँ पे क्या एप्लीकेशन चल रही है और वो क्या रिस्पॉन्स करती है कौन से रिक्वेस्ट का, वो आपको पता होना चाहिए. ठीक है, तो ये जैसे सजेस्ट करने की कोशिश कर रहा है वो इसलिए कर रहा है कि आपको ये पता चल जाए कि कौन सी एप्लीकेशन वहाँ रन हो रही है और फिर आप उसको उसी तरीके की कमांड्स भेजें. जब वो कमांड्स रिसीव करेगी आपको रिस्पॉन्स दे देगी. ठीक है, क्लियर नाउ. सो आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज पोर्ट स्कैनिंग. पोर्ट स्कैन समझ में आ गया. ठीक है, पोर्ट स्कैन के थ्रू आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सामने वाले की मशीन कौन सी है, क्या उसका ऑपरेटिंग सिस्टम है, हाँ, और कौन से पोर्ट पे कितने पोर्ट्स ओपन है उस मशीन पे. अगर कोई भी पोर्ट ओपन नहीं है तो फिर आप उसे हैक नहीं कर सकते. ठीक है, चलो ट्राई करो एक बार. nmap से स्कैन करो google.com. google.com डाल दो सीधा टारगेट में, nmap -si छोड़ो, आप ऐसे नॉर्मल स्कैन कर लो. Do an intense scan for google.com and try to see how many ports you get.